Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are very much taking care of yourself. Dear students, these days it is very important that we follow all the precautions which are required for the prevention of the spread of COVID-19 because the cases are rising exponentially. Okay, बहुत ज़्यादा cases increase हो रहे हैं. Hence, you all must take care of yourself, and while you are in your homes, stay healthy, stay fit, and also eat healthy. Please avoid eating junk food. Now, dear students, in today's class, we will be reading the chapter If I Were You. Okay? If I Were You means अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पे होता. Okay? This drama has been written by the author Douglas James. Okay? This drama has been written by the author Douglas James. Now Douglas James mainly he has written for television. Okay? उसने television dramas written write करे हैं, and he is amongst the finest writers of the British television industry. Okay, British television industry में he was very much famous. Now, all of you please open your main course book Beehive and come to page number 138. And let's start before you read. Gerard lives alone in a lonely cottage. So who is Gerard? Gerard is the central character of this drama. Okay, Gerard he lives alone. अकेला रहता है वो. एक lonely भी क्या होता है? अकेला, alone. Okay, आसपास ज्यादा कॉटेज नहीं है, एक वही कॉटेज है, उस कॉटेज में रहता है. कॉटेज क्या होता है? कॉटेज मीन्स अ स्मॉल बंगलो. Cottage means a small bungalow. An intruder who is a criminal enters his cottage. Now, what is the meaning of intruder? An intruder is one who enters by force. जो force लगा के जबरदस्ती घुसता है जो. Okay? He intends to murder Gerard. Okay? उसकी intention क्या है? वो क्या करना चाहता है? He wants to murder Gerard. Okay? He wants to murder Gerard and take on his identity, और उसकी identity चुराना चाहता है. Okay, identity is very important. I think that all of you understand why identity is important. क्योंकि अगर किसी के पास आपकी identity है तो वो उस identity का जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है. Okay, so because of this he wants to murder Gerard. Okay, now the following words and phrases occur in the play. Do you know their meanings? Match them with the meanings given to find out. Alright, so these word meanings I will explain. Okay, I will explain these while we'll be studying, so you need not worry. Okay, you can do this once we have read the chapter. Okay, now scene, a small cottage interior. जो small bungalow है उसके अंदर है हम. There is an entrance back right which may be curtained. So यहाँ पे ऐसे लिखा है जैसे अगर आप स्टेज पे एक प्ले करते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये भी लिखा हुआ है. Another door to the left must be a practical door. सो लेफ्ट साइड पे एक डोर होना चाहिए कि प्रैक्टिकल डोर होना चाहिए, जो सचमुच में एक डोर होना चाहिए. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट. सो एक दीवान भी होना चाहिए और वो कहाँ होना चाहिए? अप स्टेज, ऑन द स्टेज. ठीक है, अप स्टेज ये एक पुरानी टर्म है, ये एक पुरानी टर्म है which is not used these days. On the table is a telephone. Okay,
When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height. Okay, so Gerard की physical appearance कैसी? He is of medium height and he is wearing horn-rimmed glasses. Okay, you can see his glasses in the image as well. जैसे square बने, these are called horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. Lounge means, lounge is a place, it's a sitting room. Okay, lounge is a sitting room जहां पे लोग बैठते हैं, और वहां पे बैठने के लिए जो एक ड्रेस होती है, जो एक सूट होता है, उसे लाउंज सूट बोलते हैं. एंड अ ग्रेट कोट, जो एक लंबा से, आप देख सकते हैं इन दोनों की ड्रेस में एक इन्होंने बहुत लंबा कोट पहना हुआ जो नीज तक है. ओके, दैट इज देयर कोट. हिज वॉइस इज कल्चर्ड. कल्चर्ड मीन्स वन विद गुड मैनर्स. तो उसकी वॉइस सुन के ऐसा लगता है कि ही इज वेरी वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे मैनर्स है उसके, एंड ही इज वेरी नाइस. जेरार्ड, वेल, tell him to phone up directly, I must know. Yes, I expect I'll still be here, but you must not count on that. You must not count on that means कि तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. So, he is speaking on the phone and he's telling someone that I expect that I will still be here. Okay, but you must not trust on that. इस बात पे rely मत करना, इस बात पे focus मत करना. He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. So वो कहीं जाने के लिए पैक कर रहा है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. So now एक second person right से enter कर रहा है, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. Flashily क्या होता है? जिससे बहुत ज्यादा फैशन दिखे. Okay, quite fashionably. He bumps accidentally against the table. टेबल से वो गलती से टकरा जाता है. And at the sound, Gerard turns quickly. Gerard जब ये साउंड सुनता है वो बहुत ही quickly turn करता है. Gerard pleasantly, वो बहुत ही खुशी से, उसको लगता है कि ये कोई known person है. Why? This is a surprise, Mr. Okay. Intruder, I am glad you are pleased to see me. Pleased to see me means खुश हो, तुम मुझे देख के बहुत ही happy हो. I don't think you will be pleased for long. But मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत देर तक happy रहोगे. Okay, you won't be happy for very long. Put those paws up. Paws means पंजे. Okay, hand. अपने हाथ ऊपर करो. Gerard, this is all very melodramatic. Melodramatic means बहुत ही ज्यादा ड्रामा है ये तो. Okay, बहुत ज्यादा ड्रामा है. Not very original. Perhaps, but. So कह रहे बहुत ही ओरिजिनल नहीं है. Okay, बहुत ही ड्रामेटिक है ये सब, बट मैं कर लेता हूं. ट्राइंग टू बी काम एंड अर्थ. ओके, तो वो उसको कह रहे हैं कि तुम बहुत ही, इंट्रूडर अब कहता है कि तुम बहुत ही रिलैक्स होने की ट्राई कर रहे हो. नॉनशालांट इज द वर्ड आई थिंक, इज योर वर्ड आई थिंक. नॉनशालांट मीन्स जो सिचुएशन के चेंज होने से जो कोई भी एक जो चेंज ना हो जिसमें. ओके, जो वैसे का वैसा ही रहे. ओके, जिसपे कोई फर्क ही ना पड़े. थैंक्स अ लॉट. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. आई विल मेक यू क्रॉप.
तो उसे क्या कह रहे हैं इंट्रूडर, अब क्या कहता है, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम स्मार्टनेस जो दिखा रहे हो तुम फिर अब वो नहीं दिखाओगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें क्रॉल करवाऊंगा, मैं तुम्हें रेंगने पे मजबूर कर दूंगा। ओके, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी। सो वो क्यों आया, वो कुछ चीजें जानना चाहता है। जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। तो वो कह रहे कि उसे सब कुछ पता है, बट वो स्टार्ट करे उससे पहले वो अपनी पोजिशन चेंज करना चाहता है। यू मे बी कंफर्टेबल बट I am not. So because he's saying that he is uncomfortable, he wants to change his position. Sit down there and no funny business. Motions to a chair and seats himself on the divan by the bag. So बैग के ऊपर जो दीवान रखा है वो उसके साथ जाके खड़ा हो गया, जबकि जेरार्ड को उसने एक चेयर पे बैठने को बोला। ओके, व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू हैव अ क्लियर लुक। वो बहुत ही क्लियरली देखना चाहता है कि जेरार्ड जो है वो क्या करता है। ओके, नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। सो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे, हम तुम्हारे बारे में और जानेंगे। ओके, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, हम वो सारी डिटेल्स तुमसे कलेक्ट करेंगे। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। सिंपैथेटिक मीन्स जो सिंपैथी हो जिसके पास, जो समझे। ओके, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज। सो वो कह रहा है कि वो अपनी बर्थ चाइल्डहुड की स्टोरी सुनाएगा कि कैसे जब वो एक छोटा बच्चा था उसको किसने चुरा लिया था, जिप्सीज ने। जिप्सीज कौन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नोमैड्स होते हैं, ओके, वैसे ही बाहर जो ट्राइब घूमता रहता है उसका नाम है जिप्सीज। ओके, दे आर अ वेरी लार्ज कम्युनिटी। एंड व्हाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। एसेक्स क्या है, एसेक्स एक जगह का नाम है। ओके, सो वो कह रहा है कि वो उसको बताएगा कि कैसे उसको चुरा लिया था जिप्सीज ने जब वो बच्चा था, और वाई, क्यों वो यहां पर है। ओके, अपने इस बंगलो में है। कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ मीन्स मुझे इसको जानने में इंटरेस्ट नहीं है, इसको अपने पास ही रखो। दिस इंफॉर्मेशन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और क्या करो, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो। यू लिव हियर अलोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। वेल, डू यू, क्या तुम सच में यहाँ पे अकेले रहते हो। जेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। तो उसको क्या लगा कि उसको ऐसे लगा कि वो उसे बता रहा है, उससे पूछ नहीं रहा। A question of inflection. Inflection means जिससे information मिले। Okay? Your voice is unfamiliar. So तुम्हारी वॉइस जो है वो मैंने सुनी नहीं हुई, उसको मैं जानता नहीं। It's strange. Intruder with emphasis. Okay, थोड़ा जोर लगा के वो बोलता है, Do you live here alone? Gerard, and if I don't answer, so now he is, वो उसके साथ देख रहे कि हाँ क्या होगा अगर वो आंसर ना करे। Intruder, you have got enough sense not to want to get hurt. So वो उसको कह रहे कि तुम्हें इतनी सेंस तो होगी कि तुम चाहो कि तुम्हें कोई हर्ट ना हो। ओके, मैं तुम्हें कोई डैमेज ना करूं। I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. So अब जेरार्ड जो कह रहा है वो कह रहा है कि गुड सेंस, एक उसमें दिमाग है, उसमें सेंस है, वो इस चीज से ज्यादा दिखती है कि
वो पेन को अवॉइड करे। ओके, वो पेन को अवॉइड करे, जो पेन को अवॉइड करने की उसकी डिजायर है उससे ज्यादा दिखती है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, सो वो अब उससे होता है कि तुम्हें क्या लगता है, इंट्रूडर से पूछ रहा है वो। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड। सो कह रहा है मेरे नाम से कोई तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे नाम के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। What are your Christian names? वो से पूछे जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके नेम्स, जो कुछ उन्हें जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके क्रिश्चियन नेम्स भी रखे जाते हैं। ओके, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे पंडित नाम निकालते हैं कुछ कुछ जो एक पूजा में के टाइम पे रखे जाते हैं, वैसे वहां पे भी जो चर्च के फादर होते हैं या जो बिशप होता है चर्च में, वो नाम निकालते हैं और वो नेम्स जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, बट वो उनके ऑफिशियल नाम नहीं होते। सो व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? जेरार्ड, विंसेंट, चार्ल्स। डू यू रन अ कार? डू यू रन अ कार मीन्स क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू ओन अ कार? नो, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। सो वो इंट्रोड्यूसर से क्या कह रहा है कि देखो ये एक झूठ है। ओके, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक बेवकूफ के साथ काम नहीं कर रहे हो। सो सी, वो सिर्फ इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? ताकि वो ये एस्टैब्लिश कर सके क्या सच है क्या झूठ है। ओके, उसे उसकी डिटेल्स चाहिए, तो उसे सब सच्ची डिटेल्स चाहिए, इसलिए वो से क्वेश्चंस कर रहा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। तो उसको इंट्रूडर अब उसको जेरार्ड को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूं और तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूं। एंड आई नो यू रन अ कार, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी एक कार है। बेटर बी केयरफुल वाइस गाय। तो उसको कह रहा है वाइस मीन्स स्मार्ट, सो उसको कह रहा है कि बेटर बी केयरफुल, तुम्हें स्मार्ट रहने की जरूरत है। आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? तो वो उससे पूछे क्या तुम सचमुच में अमेरिकन हो या फिर जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ, मियरली मीन्स सिर्फ, ओके, जस्ट, सो इज इट जस्ट एन इमिटेशन, या तुम सिर्फ एक नकल कर रहे हो, तुम एक एक्टिंग कर रहे हो। ओके, तुम एक्टिंग कर रहे हो कि तुम अमेरिकन हो। लिसन, नाउ इंट्रूडर ही इज रिप्लाइंग, लिसन दिस गन इज नो टॉय। ये जो गन मेरे पास है ये कोई खिलौना नहीं है। I can hurt you without killing you and still get my answers. So, मैं जो है तुम्हें हर्ट कर सकता हूं बिना तुम्हें मारे और फिर भी मेरे को आंसर्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली। सो उसे अब क्या करेगा, वो उसे टॉर्चर करेगा। ओके, आंसर्स निकलवाने के लिए वो उसे दैट लिसन दिस गन इज नो टॉय। ओके, ये गन जो है ये कोई खिलौना नहीं है। ओके, इट्स अ वेपन, बहुत ही ये वेपन है और इससे कुछ हार्म हो सकता है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। ओके, सो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं बिना तुम्हें मारे, और क्योंकि जब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा मुझे मेरे आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट मीन्स कि अगर तुम मुझे ऐसे समझा रहे हो, अगर तुम ऐसे मुझे बता रहे हो तो यस तुम ऐसा कर सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें असिस्ट करूं, मैं तुम्हें आंसर करूं। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। सो कॉर्नर के पास कोने पे ही जो गैरेज है वहां पर मेरी गाड़ी है। That's better. Do people often come out here? So वो क्या पूछे कि ये चलो अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, ये ज्यादा सही है। ओके, that's better. तो पूछे do people often come out here? क्या लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं? जेरार्ड, very rarely, बहुत ही मुश्किल से कभी कभी लोग आते हैं। Surprisingly few people take the trouble to visit me. तो वो कह रहे हैं सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग हैं
जो ये जहमत उठाते, ये परेशान होते हैं किस चीज के लिए? मेरे पास आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। देयर इज द बेकर, ओके, बेकर कौन होता है? जो ब्रेड बनाता है, ब्रेड जो डिलीवर करता है। ग्रीन एंड द ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर ऑब्वियसली यू नो, सब्जी वाला, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, मिल्कमैन कौन होता है? दूध वाला। क्वाइट चार्मिंग, क्वाइट चार्मिंग मीन्स क्वाइट अट्रैक्टिव, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। बट ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। सी जेरार्ड अभी भी इस सिचुएशन में होने के बाद भी कितना कूल है, कितना काम है और बहुत ही रिलैक्स्ड वे में बिहेव कर रहा है। ही इज नॉट पैनिकिंग एट ऑल, बिल्कुल भी वो पैनिक नहीं कर रहा है। एंड ही इज बिहेविंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। I happen to know that you never see tradespeople. So कह रहा है कि हाँ, मैं कह रहा है कि मुझे तो ये पता है कि जो ये लोग आते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, तुम इनसे कभी मिलते ही नहीं हो। ओके, तुम इनसे कभी भी इंटरैक्ट नहीं करते, तुम कभी भी इनसे मिलते नहीं हो। ओके, so dear students, today we are going to read till here only, and I hope you all are finding this chapter very interesting and amusing. Okay, now if you have any doubts in this chapter, then please let me know. You can send me a message on Kaizala, you can give me a call and ask, or you can simply just clear up your doubts when the class is going on. Okay, so I hope you are taking very much interest and studying properly. Okay, this is the last chapter of this book. Okay, after that we have just 2 chapters to finish in the book Moments, and we'll be doing that. So please pay attention and study regularly. Okay, that's it for today, students. Thank you for your time and have a nice day.